आफ्टरनून मैम। ओके। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के कभी भी जा सकता है अगर उसकी कोई और क्लास है या कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है, कुछ भी है किसी और क्लास के रिगार्डिंग, किसी और मटेरियल के रिगार्डिंग, कि हम वो क्लास में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, हमारी दूसरी क्लास है, हमारी तीसरी क्लास है, ये असाइनमेंट है, यहाँ जाना है, घर जाना है, कभी भी जा सकता है क्लास छोड़ के कोई भी बच्चा। लेकिन प्लीज ये क्वेश्चंस बार बार बीच में मत पूछना कि मैम हम जा सकते हैं कि नहीं, दूसरी क्लास अटेंड कर सकते हैं कि नहीं। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। ओके, नो डाउन। लिखिए। इनकम फ्रॉम सैलरीज प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस कैपिटल गेन एक सेकंड में। होल्ड करिए एक मिनट, आज मैं क्लास में हूँ। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करिए। यस, इनकम फ्रॉम सैलरीज प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस कैपिटल गेन प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस अदर सोर्सेज। लिखिए। ग्रॉस टोटल इनकम, then minus deductions under section 80C to 80U। उसके बाद लिखिए टोटल इनकम, फिर लिखिए प्लस एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस @5% will be your taxable income। हाउस प्रॉपर्टी के साथ डैश देके लिखिए अंडर सेक्शन 24। कैपिटल गेन में लिखिए अंडर सेक्शन 54। बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा नहीं। एंड अदर सोर्सेज में लिखिए माइनस इन्वेस्टमेंट्स। दैट्स इट। शॉर्टकट में से नोट करो जरा एक जगह, जो क्वेश्चन जहाँ कर रहे हो वहां पे लिखो ये। ठीक है, ठीक है। यस मैम। क्लास ग्रुप पे मैसेज मिला? यस मैम। Yes, सेक्शन ma'am. ए, सेक्शन ए। Yes, ma'am. ओके, अब क्वेश्चन नोट करिए। लिखिए मिस्टर एज बेसिक सैलरी इज 50,000 rupees per month। DNS allowance
5,000 rupees per month. House rent allowance as resident of Delhi. He is receiving 7,000 rupees per month and paying 2,000 rupees per month. Traveling allowance. He is receiving 5,000 rupees per month and spending 3,000 rupees per month. He is also receiving rent-free accommodation facility from the employer in the population area of 38 lakhs. The cost of AC and furniture is 500 rupees per month. The employee is contributing 1,77,000 as life insurance corporation policy, rupees 90,000 per annum in the Prime Minister's Relief Fund, and 2,000 per month in Recognized Provident Fund Scheme, RPF. Clear? Yes, ma'am. Section A clear है? Yes, ma'am. Next. The employer is also contributing 14% of salary as Public Provident Fund Scheme / RPF. Interest received by Mr. A on RPF account at the rate of 11% of salary. Next. He is also receiving leave encashment amount that year. In that year, amounts rupees 45,000. He is using club facility
comma, orderly facility, club facility, orderly facility, personal attendant, orderly हो गया ना, एक सेकेंड, club facility, orderly facility and watchman facility. At the rate 200, 500 and 700 per month. And the amount reimbursed by the employer. Amount reimbursed by the employer. Next. Next point लिखिए. Next लिखिए. He is using gardener, sweeper, personal servant, facility and paying at the rate again 200, 500 and 700 per month. Amount is not reimbursed by the employer. मैम पर्सनल सर्वेंट फैसिलिटी के Not बाद कितना अमाउंट reimbursed by बताया the था? employer. मैम अमाउंट कितना बताया था? नॉट रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर ब्रैकेट में लिखना, एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ होता नहीं है जो मैंने लिखवाया है, मैंने भी फ्लो में लिखवा दिया, लिखा हुआ होता नहीं है. नॉट रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर. नेक्स्ट, प्रोफेशनल टैक्स is 45,000 rupees, not per month, not annum, only rupees. Professional tax. Yes. Next point. Mr. A is also having his own house apart from receiving HRA from the employer. Mr. A is also having his own house in Mumbai. Apart from HRA receiving by the employer in Delhi. Clear? Clear? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. The market value of the house in the Bombay, not Bombay, sorry, Mumbai, is market value is 92 lakhs. The municipal taxes due is rupees 45,000 per month and paid 12,000 per month. The market value of the same house for that year is 2,90,000. Then
He developed that house by the loan borrowed of rupees 45 lakhs at the rate of 14% per annum. Next, loan borrowed at the rate 14% per annum. The loan borrowed fund amount date is date of loan borrowed. Date of loan borrowed is 2021 चल रहा है ना 2017 June 2017. 20th point. The construction of the house was completed on 2000 June 2020, and the date of repayment of loan Feb 2020. The house in the Mumbai was vacant for 3 months. He also purchased a new house in 2021. कोई भी डेट लिख लीजिए 2021 की जनवरी वो मार्च से लेके अप्रैल तक की कोई भी लिख लीजिए अगस्त लिख लीजिए 2021. He also purchased a new house in 2021. Amounts rupees 20 lakhs. He invested in National Highway Authority of India 90,000 rupees. He sold out his house in Goa at the rate of rupees 52 lakhs. Which was purchased by him in 2015-16 at the rate of rupees 18 lakhs. He purchased land in the same year around 7 lakhs rupees. He purchased equity shares of कौन सा पेन है ये Advil. He purchased equity shares of
some laptops, Dell laptops, कुछ भी लिख लीजिए. Equity shares of Dell laptops at the rate rupees 12,000 each, and he purchased 5 shares. Next, 80C to 80. Next, he donated 9,000 rupees in Sai Sansthan in Shirdi. Next, next is लिख लो. एक चीज है तुमने अभी किया नहीं पर लिख लो. He is paying, इसी क्वेश्चन में कर लेना. He is paying life insurance premium. पूरा लिखना. I am audible to everyone. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. He is paying life insurance premium at the rate 2,000 rupees per month for his in-laws. Father-in-law, mother-in-law कुछ भी लिख लो. For his in-laws. In 2021. Next, he is paying life insurance premium at the rate 1,000 rupees per month for his father and mother. Next, the life insurance corporation policy for his in-laws cost or amounts rupees 1 CR, 1 crores, and life insurance corporation policy for his parents costs rupees 75 lakhs. Next point. The medical reimbursement he is receiving, the medical reimbursement he is receiving 15,000 on his parents and 19,000 for his in-laws, and the amount spent was 28,000 and 30,000 respectively. He purchased lottery tickets from Rajasthan Lotteries. Cost rupees 25,000 and he wins rupees 30,000. ठीक. He is receiving interest on his saving account 2 lakhs. He is receiving dividend 45,000 on his
शेयर्स, इक्विटी डिबेंचर अगर उसमें सिर्फ शेयर्स वर्ड लिख लीजिए, डिविडेंड। नेक्स्ट, इज रिसीविंग income from agricultural land 45,000 rupees per annum. Next, ठीक, that's it. Calculate the taxable income of Mr. A. Calculate taxable income of Mr. A for the previous year 2020-21. यस, कौन है? यस, क्वेश्चन का मिल गया, सॉरी क्वेश्चन मिला क्लास ग्रुप पे। Yes, ma'am. ओके, अगर कोई एंट्री आप लोगों से स्किप हो गई तो नोट कर लेना उसमें। नेक्स्ट, सॉल्यूशन लिखिए, बनाइए सॉल्यूशन, लिखिए ऊपर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सैलरीज, तो आंसर में इनकम फ्रॉम सैलरीज लिखेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन बच्चों को लगता है सैलरी का क्वेश्चन होता नहीं है, होता है क्वेश्चन टैक्सेबल इनकम का। तो आपको ऊपर ये लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। ठीक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम एक पेज पे सॉल्यूशन बनाइए और एक पेज पे वर्किंग रखिए। सामने 2 पेज होने चाहिए आपके क्वेश्चन, जो आंसर शीट एग्जाम में मिलेगी आपको। तो एक पेज पे आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा और साथ में ही पेज पे वर्किंग होगा। वर्किंग देखने के लिए टीचर को पेज पलटना नहीं पड़े, पेज मत बचाइएगा, वहां पे सामने वाले पेज पे वर्किंग रखिएगा। ठीक है, Yes, Okay, ma'am. ma'am. सीरियल नंबर जरूर मेंशन करना है, प्लस का साइन जरूर मेंशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन उठाइए, द बेसिक इनकम, द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी, इट मीन्स 50,000 रुपीज पर मंथ। 50,000 इंटू 12 क्या आ जाएगा अमाउंट? 6 lakh rupees. हर्ष कुमार 2083, हर्ष Yes, कुमार ma'am. 2083। सारे बच्चे अनम्यूट रखिए अपने आप को, Yes, जिससे ma'am. भी पूछा जाएगा फौरन बताना। यस, क्या आएगा बेसिक सैलरी? 50,000 इन 12 Ma'am, 6 lakh. प्लस डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस इज 5,000 रुपीज पर मंथ। सिया, सिया क्या आएगा? क्या यस मैम? 5,000 इन 12 बताइए क्या आएगा? मैम यस मैम, नो 60,000। मैम कोई नहीं करेगा, सीधे आंसर बताइए। मैम 60,000। लिखो 50,000 और नीचे नोट लिखिए सारे बच्चे। इट इज अ पार्ट ऑफ अ रिटायरमेंट बेनिफिट। इट इज अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज योर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में he is as par is he is residing in Delhi and receiving 7,000 and paying 2,000 rupees. Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai 50% of salary and other is 40% of salary. तो आपके दिमाग में होता है 50% of salary and 2,000 is paying। HRA की एंट्री क्या होती है? आयुष परवर 2097। Yes, ma'am. आयुष Yes, ma'am. actually received minus actually received। म्यूट करिए अपने आप को।
अनुष्का, अनुष्का, Yes, ma'am. यस बताइए एडजस्टमेंट क्या होती है HRA की? Actually received minus actually received slash 50% of salary slash 50%. हाँ बस ठीक है, म्यूट कर लीजिए, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया आपने। Okay, HR is actually received minus actually received slash rent paid in excess of 10% of salary and 50 or 40% of salary. Actually received is 7,000 into 12 minus 7,000 into 12 slash how much rent he is paying? 2,000 into 12 minus 10% of salary. And your salary is 6 lakhs rupees or 50% of salary. That means 50% of 6 lakhs. Whichever is minimum will be a deduction amount. I am sending you a screenshot. इसको सॉल्व करो और बताओ इमीडिएटली। सारे बच्चे सॉल्व करिए और बताइए इसे। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व करिए। असाइनमेंट में यही मंगा लूंगी आज। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? 7,000 into 12 minus 7,000 into 12, 2,000 into 12, 10% और 50%, whichever is lower. सबसे लोअर क्या आएगा? रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। Ma'am, 10% of salary is always lower in this case. राइट, सबसे हमेशा ज्यादातर क्वेश्चंस में यही होता है। 90% क्वेश्चंस में जो 10% ऑफ सैलरी होती है वही सबसे कम आती है। एग्जाम में हमेशा यही क्लिक होगा। तो 7,000 into 12 कितना आ जाएगा? 84,000. 84,000 माइनस और 10% पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी कितना अमाउंट आएगा? 60,000. कितना आएगा? 60,000. सब बच्चों का यही आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 84,000 माइनस 60,000 क्या अमाउंट आ जाएगा आपका? Remaining 24. 24,000 plus next traveling allowance 5,000 rupees per month and spend 3,000 rupees per month। ध्यान से सुनिए, ट्रैवलिंग अलाउंस हो या फिर कोई भी आर्मी अलाउंस हो, यूनिफॉर्म अलाउंस हो, डेली अलाउंस हो, कोई भी अलाउंस जो आपको याद नहीं आ रहे, क्योंकि सैलरी इज दैट मींस सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस एडवांस सैलरी। यहां तक आप ठीक से पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें प्लस कमीशन, सारी अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं। उसके बाद आप एडजस्टमेंट पढ़ते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की, इनकी आप डिटेल्स पढ़ते हैं। और इसकी डिटेल्स पढ़ने के बाद जो एंट्रीज होती हैं उनमें आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 54 अलाउंसेस हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 into 2 into 12 एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 into 12 2 into 12 माइनस करते हैं। उसके बाद सारे कंफ्यूजिंग हैं। एक्चुअली रिसीव व्हाट ही इज रिसीविंग माइनस एक्चुअली स्पेंट और एक्चुअली रिसीविंग विच एवर इज लोअर वो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स जितना पैसा उसने मिला है उसको, उसमें से जितना पैसा उसने खर्च किया है माइनस हो जाएगा, और या फिर जितना पैसा उसको मिला है उसने ज्यादा खर्च कर दिया है तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में तो हम इनकम फ्रॉम सैलरीज कंसीडर नहीं करेंगे, तो वहां पर 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे जी इसमें मैम। ट्रेवलिंग अलाउंस इसको 5,000 मिल रहा है, 3,000 खर्च कर रहा है, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 2 टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो यहाँ पर कोई भी अलाउंस लिखा होता है XYZ जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, और लिखा है 5,000 उसे मिल रहा है, 8,000 वो खर्च कर रहा है, तो 5,000 में से 8,000 वो खर्च कर सकता है। लाइफ स्टाइल उसकी सैलरी से ज्यादा है, हो सकता है उसकी पेरेंट्स बहुत रिच फैमिली से हो, वो रिच फैमिली से और वो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, तो 5,000 में से उसने 5,000 तो पूरे खर्च कर दिए, बच गए 0, तो आप 0 वहां पर लिखेंगे, माइनस में नहीं ऐड करते हैं। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है, माइनस हो रहा है तो माइनस करके लिख दीजिए, माइनस नहीं हो रहा है तो 0 लिख दीजिए। डोंट बी कंफ्यूज इन एनी अलाउंस कि वो अलाउंस के बारे में आपने पढ़ा नहीं है एग्जाम में। ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम। तो ट्रैवलिंग अलाउंस हो या यूनिफॉर्म अलाउंस हो या डेली अलाउंस हो या फिर मिलिट्री अलाउंसेस हो या ट्रांसपोर्ट टू एम्प्लॉयज अलाउंस हो, कोई भी अलाउंस हो, तो एक्चुअली रिसीव्ड माइनस actually received or actually spent whichever is lower, so actually this is 5,000 into 12 minus 3,000 into 12 क्या आ जाएगा? 24,000. 24. 24,000
नेक्स्ट इज योर इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, इसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है। रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है, ध्यान से सुनिए, आपने जो भी पढ़ा होगा, मैंने एक चार्ट भी आपको बहुत अच्छा से बनवाया होगा और वो आप लोग ऑब्वियसली भूल भी चुके होंगे अभी तक, बहुत सारे बच्चे। आपको एक बात दिमाग में रखनी है, पॉपुलेशन 0 to 10 lakhs, 10 to 25 lakhs प्लस 25 lakhs। पॉपुलेशन 0 से 10 लाख तक है एक जगह की, 10 से 25 लाख है, 25 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। तीन ही क्राइटेरिया है, ठीक है। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, फर्निश्ड अकोमोडेशन है, कुछ नहीं लिखा है इसमें। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में 7.5% ऑफ सैलरी 10% एंड 15% होता है, और फर्निश्ड में वो 15% ऑफ सैलरी होता है। और ये 38 lakhs पॉपुलेशन है प्लस 25 lakhs है। और अकोमोडेशन फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड, एसी और फर्नीचर गिवन है, इसका मतलब फर्निश्ड है तो 15% ऑफ सैलरी है। फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, अकोमोडेशन अनफर्निश्ड हो या फर्निश्ड हो वो आप बाद में सोचिएगा, पहले आप पॉपुलेशन देखेंगे। 0 to 10, 10 to 25 प्लस 25 तो 7.5% सैलरी, 10% और 15%, और या फिर 15 15 15 है तीनों में। फर्निश्ड है तो 15 है, ये फर्निश्ड है, एसी और फर्नीचर का हिसाब किताब दे रखा है तो 15 15 15 है। 15% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल इन दिस। अगर एसी फर्नीचर नहीं दिया होता, अनफर्निश्ड होता, तो ये 0 to 10 उसमें होता 7.5% ऑफ सैलरी, 10% या 15%, उसमें भी 15 होता। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. जो मैंने डायग्राम बनवाया उस डायग्राम को एक बार ध्यान से, अगर आपके पास अभी नोट्स हैं तो देखिए, वो चीज टैली कर जाएगी। अगर आपने याद नहीं किया है तो भी। तो 15% ऑफ सैलरी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, 15% ऑफ सैलरी प्लस कॉस्ट ऑफ एसी एंड फर्नीचर। जो कॉस्ट ऑफ एसी और फर्नीचर है उसका 10% ऐड होता है, राइट? तो 10% ऑफ एसी एंड फर्नीचर, तो 15% ऑफ सैलरी आपकी 6 लाख है प्लस 10% ऑफ एसी एंड फर्नीचर कितना है, 500 इंटू 12। इसका अमाउंट कितना आ जाएगा बताइए, स्क्रीनशॉट शेयर करिए यहाँ तक के क्वेश्चन। Total 96,000. एक मिनट विनीत, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को ये रेंट फ्री अकोमोडेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चों को क्लियर है? अदर्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. क्वेश्चन ध्यान से कर लीजिए, आप लोग रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बताती हूँ रिटर्न फाइल करने में ये क्वेश्चन कैसे टैली करता है। कितना अमाउंट आएगा विनीत? 96,000. 96,000। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पॉलिसी में उसने दिए हैं 177। अब सुनिए ध्यान से, एक मिनट सुन लीजिए। जब आप डिडक्शंस माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U, पहली डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C आती है। 80C की पहली डिडक्शन हो जाती है आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की प्रीमियम पॉलिसी, जो आप माइनस करते हैं 1.5 लाख तक। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम का मतलब ये होता है कि जो आप हर महीने पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पॉलिसी का मतलब होता है जो पॉलिसी आपने खरीदी है। हो सकता है आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली हो सकता है आपने 12 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली हो, डजंट मैटर। आपने 12 करोड़ उन्हें दे नहीं दिए या उन्होंने 12 करोड़ नहीं दे दिए। अगर किसी के हाथ में 12 करोड़ आ जाएगा तो एज इनकम टैक्स ऑफिसर 12 करोड़ पे टैक्स लगा देंगे, लेकिन उसने पॉलिसी ली है 12 करोड़ की, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, जो कभी रियलिटी में बेटा रिडीम नहीं होती है। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन से अलग करके बता रही हूँ, मैंने रिसर्च पेपर लिखा है 3 साल में। LIC में आप लोग डेटा सर्वे करिए, किसी को पैसा जितना उसने इन्वेस्ट किया उतना भी रिडीम हो जाए तो गनीमत है। तो कितने भी करोड़ की आपकी पॉलिसी हो, डजेंट मैटर, जो आप प्रीमियम दे रहे हैं, हर महीने आप जो पैसे पे कर रहे हैं, वो पैसे आपकी डिडक्शन का पार्ट हो जाते हैं। कि भाई हमें पैसे जमा कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो आप गवर्नमेंट से कहते हैं हमने सैलरी आपसे ली, और जब या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो भी हमने सैलरी कंट्री से ली और हम कंट्री में फिर वापस इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो आपको डिडक्शन मिल जाती है। वो होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पॉलिसी एक अलग चीज होती है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am.
ओके इसके बाद अभी तक हम इनकम फ्रॉम सैलरीज में इसको पढ़ते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये चैप्टर ये बात फिर से रिपीट होती है। और अगर ये क्वेश्चन टैक्सेबल इनकम का आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सिर्फ 80C में इसको माइनस कर देते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज। आगे आप लोगों ने क्वेश्चन किया, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की कोई भी पॉलिसी लेते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो आप अपने लिए ले सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए ले सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए ले सकते हैं, और या अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए ले सकते हैं। दैट मीन्स आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर अपने ब्लड रिलेशन के लिए ले रहे हैं और या फिर उसके अलावा सिर्फ हस्बैंड और वाइफ, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, ये होता है तो वो आपके डिडक्शन का पार्ट होता है। उसके अलावा अगर आप किसी के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो आपकी डिडक्शन का पार्ट नहीं होता है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. तो पहली चीज है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कई करोड़ की होगी। दूसरी चीज आती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं। तीसरी चीज आती है कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किस किस के लिए ली है। तो आप ब्लड रिलेशन के लिए सकते हैं या अपने स्पाउस के लिए ले सकते हैं। अगर उनके लिए ली है तो आपको डिडक्शन मिलेगी, और किसी के लिए भी आपने ली है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इनकम फ्रॉम सैलरीज के क्वेश्चन में आप जनरली अभी तक यही करते हैं क्वेश्चन में कि मिस्टर ए इज पेइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट दिस फॉर दिस ईयर। वहां पर ये नहीं लिखा होता उसने उसके लिए ली है किसके लिए ली है। ये बात लिखी हुई आपको मिलती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में। ठीक Yes, ma'am. ठीक। तो अभी यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरीज का। एक सेकेंड। इनकम फ्रॉम सैलरीज में अभी आप देखते हैं कि लिखा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे इतना पे कर रहा है, जो कि डिडक्शन का पार्ट होता है अंडर सेक्शन 80C। ठीक है? ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस क्वेश्चन को, इस एंट्री को अभी आप सर्कल करिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि आप डिडक्शन माइनस करेंगे। जो सबसे पहले मैंने भी क्लास में बनवाया सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन जो भी बनवाया, उसके बाद डिडक्शन माइनस हुई है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसको फॉलो करते चलिएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन सेम हेड में माइनस हुई है, कैपिटल गेन की डिडक्शन सेम हेड में माइनस हुई है, लेकिन सैलरी की जो डिडक्शन आपने बुक में पढ़ी है और चैप्टर्स में आप पढ़ रहे हैं वो लास्ट में टोटल ग्रॉस में से माइनस हुई है। अगर बाकी सारी चीजें गिवन नहीं होती, जो आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज का क्वेश्चन कह के ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं, होता वो टैक्सेबल का है, तो बच्चों का वही फ्लो बना होता है। उस क्वेश्चन में ये नहीं होता है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज मिसिंग होते हैं। किसी चीज का एग्जिस्ट नहीं होना और मिसिंग होना दो अलग अलग बातें होती हैं। कोई इनकम फ्रॉम सैलरीज में हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम में हाउस प्रॉपर्टी मिसिंग हो सकता है। तो ये चार जब मिसिंग होते हैं तो आप डिडक्शंस डायरेक्टली माइनस करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज के चैप्टर में। क्लियर हो गया जो करते हो आप? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. आप ग्रॉस डिडक्शंस में माइनस करोगे, तो अभी आप उस एंट्री को, सिक्स्थ एंट्री को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 90,000 रुपीज पर एनम प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये भी 80C का पार्ट है। 7 इसे भी अभी स्किप करिए, ये डिडक्शन के टाइम पे। एंड 2,000 रुपीज पर मंथ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ही इज कंट्रीब्यूटिंग। ये अपने RPF में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं @ 2,000। ये भी 80C का पार्ट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये सैलरी का पार्ट है। उसका एम्प्लॉयर भी जितनी उसकी सैलरी है उसका 14% उसे पे कर रहा है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पार्ट होता है। अब आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, इस टाइम पे ये एग्जाम नहीं हो रहा है, ये क्लास है, आपने अभी तक 5th एंट्री लिखी है, राइट? Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. 5th के बाद आप सीधे लिखिए 9th, 7th, 8th और 9th, सॉरी 6th, 7th और 8th। ये आप डिडक्शन में लिखिएगा, सीरियल नंबर सेम रखिएगा ताकि आगे के लिए कंफ्यूजन नहीं हो कि किसकी एंट्री कहाँ होती है। सीरियल नंबर अभी मत फॉलो करना। क्लियर हो गया? Okay, ma'am. तो 5th के बाद सीधे लिखिए 9th। 9th में लिखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी सैलरी का 12.5% तक, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कहीं भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन 12.5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है
तो वो टैक्सेबल होता है। तो 14% माइनस 12.5% जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होता उसकी सैलरी का 10%, उसको पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होते पैसे, लेकिन 12.5 से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए टैक्सेबल होगा। दैट मीन्स 14% ऑफ 6 lakhs विच इज द सैलरी माइनस 12.5% ऑफ सैलरी, जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना अमाउंट आएगा जरा बताइए? 14% of 6 lakhs minus 12.5% of 6 lakhs. 9,000. 9,000 will be taxable amount. 9th के बाद लिखिए नेक्स्ट क्या है? Interest received by Mr. A on the RPF account. 10th इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है। जो इंटरेस्ट आपने एक अकाउंट में पैसे खुद भी जमा किए, ठीक है, वो डिडक्शन का पार्ट है। एम्प्लॉयर ने जमा किए, टैक्सेबल पार्ट है। अब बैंक ने भी आपको इंटरेस्ट दिया, वो टैक्सेबल है 9.5% से। दैट मीन्स 9.5% ऑफ सैलरी जितना भी है, और ही इज रिसीविंग 11% ऑफ सैलरी। 11% माइनस 9%, अगर 9.5 से कम बैंक देता है तो टैक्सेबल नहीं होता। तो 11% ऑफ 6 lakhs minus 9.5% of 6 lakhs. This is your interest credited. Credited word जरूर लिखना है इसमें। Interest credited to PPF account. कितना आ जाएगा इसमें? 9,000. इसमें भी 9,000 आएगा? Yes, ma'am. Ma'am. ओके। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो क्वेश्चन, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो। ठीक। नेक्स्ट है आपका 11th पॉइंट, लीव इनकैशमेंट। जब भी हम लीव इनकैशमेंट की बात करते हैं, ग्रेजुटी की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, इसको पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस साल की जो उसकी लीव्स है ना, सिर्फ इस साल का उसको पैसा मिला है। तो सिंपली लीव इनकैशमेंट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट, कहीं लिखा ही नहीं है, हम प्राइवेट एम्प्लॉय ही मान रहे हैं क्योंकि बॉम्बे में उसका घर है, दिल्ली में वो नौकरी कर रहा है, आगे जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है। तो लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होता है, इस पे सिंपली 45,000 पर टैक्स लग जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, हर सीरियल नंबर के आगे आप प्लस का साइन बनाते चलिएगा कि क्या ऐड हो रहा है। सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स के सामने माइनस का साइन लगेगा और डिडक्शंस के। लीव इनकैशमेंट 45,000 प्लस कर दो। नाउ द क्लब फैसिलिटी, ऑर्डरली फैसिलिटी, वॉचमैन फैसिलिटी के लिए उसको 200, 500, 700 रुपए मिलते हैं एंड रिम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर। ठीक ठीक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और गार्डनर स्वीपर पर्सनल के लिए उसको 200, 500, 700 वो खर्च करता है जो कि एम्प्लॉयर से नहीं मिलते। अब देखिए, अगर क्वेश्चन तो मैंने बहुत स्मूथ क्वेश्चन बनाया है इसमें, इसलिए ऐसा लिख दिया क्योंकि पढ़ा रही हूँ अभी। ऐसा होता नहीं है, लिखा होगा ही इज पेइंग रुपीज दिस फॉर क्लब फैसिलिटी, ऑर्डरली, वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर, पर्सनल अटेंडेंट, इनके लिए इतना पे कर रहा है। उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है कि नहीं ये भी नहीं लिखा होगा, उसको कंपनी से मिल रहा है कि नहीं ये भी नहीं लिखा होगा। अब ध्यान से सुनिए, पहली चीज लिखी होती है कि these facilities are received by the company। ठीक ठीक, Yes, ma'am. मतलब आपको मैंने 10,000 रुपए दिए, ये लीजिए 10,000 रुपए, और आपने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। ठीक, Yes, ma'am. उसके बाद मैंने 10,000 रुपए दिए, आपने 5,000 रुपए खर्च किए, तो 5,000 रुपए आपने बचा लिए। एक चीज ये है, एक चीज ये है कि आपने 10,000 रुपए खर्च कर दिए
और मैंने आपको 3,000 रुपए दिए या 5,000 रुपए दिए। ये 3 बातें ध्यान से समझ लो। पहली चीज, जो आपकी नौकरी है, जो आपकी जॉब है, वो क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर है। दैट मीन्स यू आर सैंक्शनड ऑफ दैट। आपको ये पैसे मिलेंगे आपकी सैलरी में। वॉचमैन के लिए और स्वीपर के लिए, ऑर्डरली के लिए पैसे मिले आपको। पैसे मिले और पैसे आपने उनको दे दिए, बात खत्म। सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। राइट? Yes, राइट? हाँ। आपको पैसे मिले, आपने उनको सैलरी दे दी। ये होता है सैंक्शन। लेकिन यह सैंक्शन वर्ड होता है, एग्जाम में लिखा होगा पैसे आपको मिले, आपने पैसे दे दिए, लेकिन रियलिटी में बेटा आप देते नहीं हो। रियलिटी में पैसे सीधे उनके अकाउंट में जाते हैं। ठीक? आप सिर्फ yes, साइन करते हो एक पेपर पे, उसका मतलब होता है हाँ कि पैसे दे दो। रियल चीज समझ लो, क्योंकि इसमें एंट्री में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। 200-500 का हिसाब होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक जॉब पर हो, आप क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर हो, आप सेक्शन ऑफिसर बनते हो ग्रेजुएशन करने के बाद। आपको ये वो अटरम बटरम सारी फैसिलिटी मिल गई। आपके पास पेपर आता है, क्या ठीक से काम कर रहे हैं, आपने साइन कर दिया हाँ, क्योंकि आपको नौकर चाहिए, सीधी सी बात है। काम करना है आपको फैसिलिटी। अगर आपने गलत लिख दिया तो नया नौकर 2 महीने बाद आएगा, कौन इतना चक्कर उठाएगा। लगता है ठीक है करो यार, आप साइन करते हो। रियलिटी में होता है ये। और उनको सैलरी मिल गई। लेकिन जब इनकम टैक्स में लिखा जाता है तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको इतने पैसे मिले और आपने उसको पैसे इतने दे दिए। ठीक है, तो 0। उसके बाद दूसरी बात लिखी होती है, आपको इतने पैसे मिले, आपने दिए उनको 300 रुपए, तो क्या बाकी पे टैक्स लगेगा? सोच के बताओ। पैसे उनके अकाउंट में गए हैं, आपने साइन नहीं किया है, तो क्या टैक्स आप दोगे? नो मैम। ये दूसरी बात है, उसमें पैसे आपके। दैट मीन्स अगर आपकी जॉब ये है कि आपकी सैलरी में आपको पैसे मिल रहे हैं उनके, तो दोनों सिचुएशन में आपकी सैलरी में ऐड कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया? आप उनको दो या मत दो, प्रैक्टिकली ऐड कुछ नहीं हुआ। राइट? yes, ma'am. राइट अदर्स? यस मैम। Yes, ma'am. अगर आपकी जॉब क्लास 1 है, आपको उनके पैसे मिल रहे हैं, दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। दूसरी बात, क्योंकि वो अकाउंट से अकाउंट डीलिंग होती है। आपकी सैलरी क्लास, मतलब मैं अपने बच्चों के लिए तो नहीं बोलूंगी, चलो इस जॉब पर हो कि आपको सर्वेंट्स नहीं मिल रहा आपकी जॉब में, ठीक है, उसमें आपका स्टेटस इतना हाई है कि आप जॉब रख रहे हो, सर्वेंट रख रहे हो। भाई कोई सर्वेंट रखता है, कोई नहीं भी रखता है। सच बात है, इंडिया में ये बड़ा बुरा हाल है कि भाई हम सारा काम खुद ही करते हैं। जब लोगों का बस चले तो मुझे तो लगता है कि धोबी नाई मोची सब खुद ही बन जाए घर में। सबकी जॉब चली जाए, सब हम ही बन जाएंगे, टेलर भी हम ही बन जाएंगे। एनीवेज, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। अच्छा होता है, कुछ लोगों को पसंद होता है। तो क्या होता है कि आपको, आपने सैलरी, आपकी सैलरी है भाई 5 लाख रुपए है मेरी सैलरी, और आपने 10 नौकर रख रखे हैं। जॉब में सर्वेंट्स मिले या नहीं मिले, लेकिन आपने सर्वेंट्स रखे हैं, आप पैसे दे रहे हैं। अब आपके एम्प्लॉयर को ये पता चला, उसने कहा नहीं नहीं आपको हम पैसे देंगे, और उसने पैसे दे दिए। अब टैक्स लगे या नहीं लगेगा? लगेगा। अब टैक्स लगेगा। जब भी आपको पैसे एडवांस में मिले हैं अपने एम्प्लॉइज को पे करने के लिए, इन कैश और इन पेपर्स, तो सैलरी क्वेश्चन में वो ऐड नहीं होगा। जब भी पैसे रिम्बर्स होते हैं तो वो सैलरी में ऐड होगा, बिल्कुल शॉर्टकट में। लेकिन 1% एक्सेप्शन भी होता है। 99% में जहां रिम्बर्समेंट लिखा है वहां ऐड होगा, और जहां रिम्बर्समेंट नहीं लिखा है वो ऐड नहीं होगा। क्लियर? Okay, ma'am. ना, उसके बाद he is using club facility, orderly facility, watchman facility at the rate this and reimbursement by the employer. employer reimburse कर रहा है, उसे पैसे दे रहा है, तो ये तीनों उसकी सैलरी में ऐड हो जाएंगी। ठीक है? क्लब फैसिलिटी कितना आ जाएगा? 200 इंटू 12। नेक्स्ट है ऑर्डरली फैसिलिटी। 12th का फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये क्लब फैसिलिटी। सेकंड पॉइंट ऑर्डरली फैसिलिटी, वैसे भी वर्ड फैसिलिटी है इसमें तो। थर्ड पॉइंट इज योर वॉचमैन फैसिलिटी इज 700 इंटू 12। 13th गार्डनर फैसिलिटी। अब गार्डनर के उसने पैसे खर्च किए, एम्प्लॉयर को नहीं मिल रहे हैं, एम्प्लॉय को नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ये ऐड होगा सैलरी में? No, ma'am. बल्कि वो तो ये कहेगा डिडक्ट करो भाई, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है?
और ये 200 इंटू 12, 500 इंटू 12, 700 इंटू 12 प्लस करके कितना आएगा? 14,400. 17,800. कितना आएगा? 17,800. 439 कितना मैम आएगा बेटा? 17,800. मैम 17,800. 2,400 plus 6,000 plus 8,400. ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं इस क्लास से अलग एक बात वैसे करना चाहूंगी, ये तो पर्सनल है वैसे। आप लोगों को सर्वेंट्स रखना पसंद है कि नहीं है? मेरी क्लास के बच्चों को